नेक्स्ट क्लास फ्रॉम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स हैं ये जो मतलब देख रहे हो ना, ये सेमीकंडक्टर फ्रॉम टाइप्स। वेट करो थोड़ा सा, क्या आज लिखना कुछ भी नहीं है, मैं इसमें हेडिंग लिख रही हूँ तो इसमें क्या पढ़ाने वाली हूँ। दैट्स इट। Types of semiconductor we are going to discuss. So there are two types of semiconductor. One is intrinsic semiconductor, one is extrinsic semiconductor. uh, Intrinsic, which is without impurities and which is called as pure semiconductor. Extrinsic semiconductor with impurities. So in intrinsic semiconductor there are they are made up of group 14 elements. So intrinsic semiconductor are made up of group 14 elements. Since every atom is bonded, since every atom is bonded, whether are with other four atoms, since every atom is bonded with other four atoms, so they have मतलब like one, देखो ज़रा, this is an atom. Every atom is bonded with other atom and it have four bonded electron, मतलब four bond, which the and all bond are bonded with another atom. All atom is bonded with another atom, so via covalent bond, and there is no free electron or charge carriers in it. In the, we can say, in the ideal case, and we also know that there is no ideal case exist so far. So there are some compounds in which the bond breaks in room temperature, and so ज़रा देखिए, if we have two types of atom and there is a bond, this bond is a break in room temperature and there are two electron there, one is this, and both the electron are present there, and this process is known as thermal aberration. So the conductivity of an intrinsic semiconductor is only because of thermal aberrations. What is thermal aberration? I have already discussed. No, that is at room temperature, at very low temperature, bond breaks, leading to the production of charge carriers, which is electron, and whenever the electron goes around, there is some positive charge there, and this portion is called your holes. Okay, the bond breakage because of capital T is thermal aberrations. So reason being the bond breaks is called as, the bond breaks because of because of temperature, this is called as thermal aberrations. Okay, yes. Now if we are going to discuss that there are two types of charge carriers, we are already discussed. One is a positive, one is a negative. Positive is called as holes, which is vacancy of electron, always vacancy of electron, and this is your electron. If we are going to discuss about this, because this is the only negative charge, only electron, nothing else. And if we are going to about, एक सेकंड रुको जरा, okay, if we are going to discuss, wait, yes, if we are going to discuss about electron, so if this electron goes, if the electron goes, then there is a vacancy electron occurs, vacancy place occurs, which is like this. And there is the places there. Okay, so this is the vacancy electron, and if you are going to say that ये जो ब्लू वाला है, देखो ये जो ब्लू वाला है, अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये जो रेड वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इधर फंसा हो जाता है, लाइक क्या होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला जगह आ जाता है, मतलब इस जो वैकेंट प्लेस है यहाँ आ जाता है, ठीक है, जो वैकेंट प्लेस है यहाँ आ जाता है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, तो देयर इज वैकेंट प्लेस एट दिस प्लेस, ठीक है. ओके, तो वी कैन सिंपली से द ये जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन है वो it travels in opposite direction of the motion of electron. So the motion is going like this, the vacant is going like this. Okay, तो ये हो गया. अगर यहीं पर अगर ये जो रेड वाला वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा,
तो ये और एक वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, तो वी कैन सिंपली से इट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वन बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू थर्मल एब्रेशंस, ओके बस ये तुम्हारी फोर्थ पॉइंट था। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स, जो मैंने तुम्हें पहले से बता चुकी हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ब्रेक कर रहा है, अगर if we have two electrons which is bonded by a bond, and if the bond breaks here, if the bond breaks, so there is one electron and electron, and if the electron is going, then there is a vacant place occur। ठीक है, ज़रा देखो ये वाला, लाइक कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला गया, ठीक है। अगर ये मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारी देखो, ज़रा देखिए, एंड इफ़ द इलेक्ट्रॉन गोस देन देयर इज़ अ वैकेंट प्लेस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी यहाँ पर एक वैकेंट प्लेस आएगा जिसको मैं रेड से डिनोट कर रही हूँ, एकदम ये वाला देखो, ये वैकेंट प्लेस आता है। ठीक है, जो रेड वाला डार्किंग कलर में दिखा रही हूँ वो तुम्हारी होल्स हो गया। ये तुम्हारी फिफ्थ पॉइंट भी बताता है। ठीक है, तो क्या बताते हैं, मैं इंग्लिश में डिटेक्ट भी कर लेते, जो लिखना चाहते वो लिख सकते हैं। व्हेन वन बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू थर्मल एबरेशंस, टू इलेक्ट्रॉन एंड टू होल्स आर प्रोड्यूस्ड, सिंस वी कैन से, अगर एक बॉन्ड टूट रहा है, देखो हम ये भी लिख सकते हैं, इफ़ एक बॉन्ड टूट रहा है तो हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड यहीं पर टू होल्स भी हमारे पास हो रहे हैं। अगर हम ये लिखेंगे कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बॉन्ड टूट है, देन वी हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड n नंबर ऑफ होल्स, ये आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड n नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, यस, ओ सॉरी 2n नंबर ऑफ, सॉरी यस, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2n नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, बिल्कुल। सो दिस इज द पॉइंट, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2n नंबर ऑफ होल्स, विच इज़ द डिटेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम इस पर ये हमारी जो था, ये हमारी सिक्स्थ पॉइंट था। तो हमें ये पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होल्स भी निकल रहे हैं। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उतनी ही नंबर ऑफ होल्स भी निकल रहा है। तो वी कैन सिंपली से कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तुम्हारी सारी की सारी डिस्कशंस अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डन है। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे कि तो अब हम ये भी लिख सकते हैं कि n नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है जी, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इनोवेटिव नहीं, अब अपन बात करेंगे
जो हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके बारे में, ठीक है। हालांकि मैंने कहा था कि मैं नहीं लिखूँगी, बट इसलिए बिकॉज मुझे जो भी लिखना है वो मैं लिख रही हूँ, तो कोई मुझे कमेंट नहीं बताएगा कि भैया लिख कर क्या यार तू लिख के नहीं बता रहा, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस यू ऑल द थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्कोर गुड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। The people who are not able to do such things, I am going to do. Okay. सो मुझे ना एक्चुअली क्या होता है, काम कर रहे थे, मैं म्यूट करके चला जाता हूँ, तो डोंट नॉट वरी कुछ वर्ड, ठीक है। जो भी तुम्हें लगे बंद है तो स्किप द वीडियो, इसलिए तो मैं लाइव नहीं आती हूँ, ठीक है। ओके, आप देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय अब सारे बच्चे टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो लाइक हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक विच इज़ विदाउट इम्प्योरिटी, सो एक्सट्रिंसिक वो है जिसमें इम्प्योरिटी आपने डाला है, ठीक है, विच इज़ विथ इम्प्योरिटी वी कैन सिंपली से, ठीक है। सो when impurities are added in semiconductor, this is called as extrinsic semiconductor, ठीक है। अगर हम यही पर बात करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, दिस इज़ द प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग। तो ये जो भी प्रोसेस है उसको हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करेंगे कि in extreme semiconductor there are two types of semiconductor is present. One is your n type semiconductor and one is your p type semiconductor. But
एंड देर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट. वन इज योर सेमी कंडक्टर एटम्स, वन इज योर डोपिंग एटम्स. तो डोपिंग एटम्स वो होते हैं जब भी हम सेमी कंडक्टर में कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो वो जो भी बनता है मतलब वो प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं. तो इन एक्सटेंस सेमी कंडक्टर देर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स. वन इज़ योर, एक तुम्हारी जो है वो सेमी कंडक्टर एटम है और दूसरी तुम्हारी जो है वो तुम्हारी डोपिंग एटम है. ठीक है, DL लिखते हैं तो आई थिंक आई गेस आई उम्मीद की तुम्हें समझ. ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे कि डोपिंग टू हम डोपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है. लाइक अगर हमने कि एक मतलब ग्लास ले और इसमें एक रेड कलर की जो बूंदे डाले, लाइक अगर तुम ओडिशा में होते हो, मैं आई मीन कि तुम अगर ओडिया हो तो हमारी यहाँ पर जो लाल कलर की जो पैर में लगाते हैं ना उसको अड़ता बोलते हैं. आई एम गोइंग टू राइट हियर अ ठीक है, बट आई डोंट नो इन विच सिटी यू बिलोंग्स, बट ठीक है. एंड नॉट अड़ता बलता कुछ नहीं, इसको रेड कलर की बूंदे तुम जाने होंगे होली में जो पिचकारी हम डालते वो रेड कलर का एक ही चीज़ डालने से वो सारी की सारी रेड बना लेते. तो मतलब एक ही डोपिंग एक ही इम्प्योरिटी डालने से सब कुछ एकदम इम्प्योर हो गया. लाइक सब कुछ का कलर एकदम रेड हो गया. बिल्कुल वैसे तरीके से लाइक एक पचा टमाटर को अगर हम पूरी फ्रेश टमाटर में भी रख लेंगे तो वो सारी की सारी टमाटर को बर्बाद कर देता है, मतलब सारी की सारी टमाटर को पचा लेता है. उसी तरीके से अगर हम एक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योर प्रोडक्ट डाल देंगे तो वो जो इम्प्योर प्रोडक्ट तभी डाला जाएगा जब उसका जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगा और उसका जो एटम की साइज़ है वो तुम्हारे पास जो साइज़ होगी वो भी सेमीकंडक्टर की साइज़ से कंपैरेबल होगा, तभी जाकर तुम कुछ भी इम्प्योर प्रोडक्ट को डाल सकते हो. ठीक है, हम जो भी इम्प्योर प्रोडक्ट डालेंगे वो उसका अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो तभी जाकर वो सेमीकंडक्टर की साइज़ को बढ़ा सकता है या फिर कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं सिंपली. ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट कि इम्प्योर प्रोडक्ट को डालने से हमारे डोपिंग करने से हमारी जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर कर दिया. हमने कंडक्टर भी पढ़ा था, हमने इम्प्योर इंसुलेटर भी पढ़ा था, हमने सेमीकंडक्टर को भी पढ़ा था, लेकिन हमें जो सबसे प्यारा है वो सेमीकंडक्टर इसलिए है क्योंकि वी कैन कंट्रोल इट, द प्रोडक्ट इज़ इन आवर कंट्रोल. लाइक हम मेहनत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ को एक कंट्रोल्ड वे में रखें, एक कंट्रोल्ड मतलब तरीके में रखें कि हम उसी की लाइन पे चलें. लाइक हम अभी से मतलब जो भी है हम सारी चीज़ों को एकदम सेफ साइज पे रखते हैं, हम सब कुछ एकदम प्रॉपर जगह रखते हैं क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ता है हम इसको प्रॉपरली ला पाए कि तो वो हमारे कंट्रोल में. उस तरीके से जो भी हमारे कंट्रोल में होता है उसको हम मतलब वो हमें ज़्यादा प्यारा होता है ना, मतलब हमें वो ज़्यादा पसंद होता है ना. तो वही बात है कि मतलब हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेमीकंडक्टर के मतलब हम डोपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम अभी देखेंगे टू इंक्रीज कंडक्टिविटी इफेक्टिवली कैन ओनली बी डन व्हेन द जब भी डोपिंग आइटम जब हम डोप करेंगे तो मैं बता चुकी हूँ वो तभी इफ़ेक्टिव होगा जब उसका जो साइज़ उस सेमीकंडक्टर के एटम की साइज़ के साथ कम इक्वल हो या फिर बराबर हो या फिर कंपेरेबल. लाइक हम एक बहुत बड़ी एटम की बहुत छोटी एटम के साथ कंपेरेबल नहीं कर सकते. अगर हम इस पर बात करेंगे तो हमारे पास ग्रुप 14, ग्रुप 13 और ग्रुप 15 है. तो सिंपली ये जो ग्रुप 13 है तुम्हारे सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब जो भी यार ग्रुप 14 और ग्रुप 15, तो वी कैन सिंपली से कि जो ग्रुप 15 का एटम है उसका कंपेरेबल साइज ग्रुप 13 और 15 ही होगा. ठीक है, तो ये जो दो है वो तुम्हारे डोपेंट एटम बोला जाएंगे. ठीक है, सो वी कैन से ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए ये जो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 है वो तुम्हारी ये बोला जाए क्योंकि हमें पता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो यही होते हैं. तुम्हारी जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो ग्रुप 14 है. तो ग्रुप 14 का जो कंपेरेबल साइज वो ग्रुप 13 ही होगा या फिर ग्रुप 15 होगा, ग्रुप 16 नहीं होगा या फिर ग्रुप
2, 3 ये सब नहीं होगा, ठीक। तो ग्रुप 14 का ऑलवेज कंपेरेबल साइज जिसका ग्रुप 3 होगा या फिर सॉरी ग्रुप 13 होगा या फिर ग्रुप 15 ही होगा। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। अगर यहीं पर हम अगर ग्रुप 13 को ऐड करते, if we use group 13 then this process is called your p type semiconductor, and if we use group 15 then this is called as n type semiconductor। तो how to remember this, देखो बेटा हम p को ऐसे लेते, ठीक है, हम 13 को भी ऐसे लेते। काम करो, एक इसको लाओ और यहाँ पर जोड़ दो ऐसे करके। तो ये जो प्रोसेस बनी, तुम अगर इसको मतलब इरेज कर लो, इस वाला साइड पर तुम इरेज कर लोगे तो ये तुम्हारे ऑलमोस्ट पी तो हो गया। देखो ना, ऐसे था और ये था एक, मान लो कि कुछ है ही नहीं, तो ये तुम्हारी पी तो बन गया। तो जब भी हम 13 को लिखेंगे, मान के चल रहा कि वो तुम्हारे पी ही लिख रहे हो, और जब 13 आएगा तो वो तुम्हारे पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और जब भी तुम 15 लिखोगे तो वो तुम्हारे एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि दो ही सेमीकंडक्टर वी हैव, एक पी टाइप और एक एन टाइप। वेन एवर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द पी टाइप विच इज़ ग्रुप 13 एलिमेंट, द remaining part is your group 15 which is equal to your n type semiconductor। I think I am clear here, okay। So there are two regions behind the conductivity of an exchange semiconductor। one is thermal aberrations which we have already told you कि जब भी हमारे पास एक मतलब दो एटम होते हैं उनके पास एक बॉन्डिंग होता है, जब हम इस बॉन्डिंग को तोड़ते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन आता है, और जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसकी जगह होल क्रिएट हो जाता है, एंड दैट होल इज कॉल्ड एज थर्मल एबरेशंस, ठीक है। सो वन प्रोसेस इज योर थर्मल एबरेशंस एंड सेकेंड प्रोसेस इज योर डोपिंग। सो आई थिंक आई गेस आई क्लियर नाउ कि देयर आर टू प्रोसेस और देयर आर टू रीजन्स behind the conductivity of an exchange semiconductor। One is your thermal aberrations and one is your extrinsic semiconductor। So that is it, thank you and bye। next class from n type, p type और n type, p type और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स से स्टार्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स से स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना। बाय।